हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हमारे साथ मिस्टर आर एन सिंह हैं। एंड एज ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज द आर्ट टॉक बाय स्नेहा आर्ट्स, एंड स्नेहा आर्ट्स is one of the leading art galleries in South India, which is led by Dr. Snehalata Prasad, who's the director and the art collector. And every year, Sneha Arts does art collection, and she conducts a lot of art events. So today we have somebody special, Mr. Arun Singh. It is very important we have artists and a good friend who can also sell the art. So we have a very famous personality who's been good close friend to a lot of eminent artists like Mr. M.F. Hussain and Raza sir and a lot of other eminent artists. And he's been friends with them because he was one of the leader who knew how to sell their art. Where the artists are very busy in their own art, you need somebody who can also take up this particular art, create the value, know the value of the art, know which is authentic, which is not, build a pricing for it, ensure the artist is also paid the right value for the art which is created, and present it to the right audience. So that is very important, and I think that is one of the major tasks after the art is built by any art gallery or personality like Mr. Aran Singh. So it's an honor to have you here, sir. So Mr. Aran Singh is the founder director for the Progressive Art Gallery, which is based out of Delhi. And he's, as I've mentioned earlier, he's worked with a lot of eminent artists to showcase their art, to get the right pricing for that particular art. And one of the articles which I've seen of you, sir, where you mentioned जो 1978 में 1,000 रुपीज में बिकती थी, now the value of the same art is around 25 crores. So that creates the curiosity that I should also get into the art. It is like an investment. You're basically investing in art, and then getting the right value after the years come by. So it's an honor having you here. And maybe आप बता सकें आपकी जर्नी कैसी थी? How was your journey? When did you come into art? कब लगा कि आपको आर्टिस्ट को हेल्प करना है, एंड देन यू हैव दिस सेल्स स्किल ऑफ सेलिंग द आर्ट? ये जर्नी कब शुरू हुई? Okay. Namaskar, दोस्तों. It is my privilege and pleasure to come on the platform on Sneha Art Center. Let me compliment first Sneha. Sneha, I know, I think more than 15 years, and I don't have words to appreciate because she's not only artist, she's a good organizer, she's a gallery owner, she's an art collector, she's social worker, and she's a good mother, and she's a woman, a girl. So I must appreciate her the way, and I have witnessed the way she has grown up because she became very passionate about art, and there is no any branch or anything she left to take care or maybe get involved or maybe the active participation, I can say. But she is very hardworking, determined, and focused. So I must compliment her, and I must appreciate her, and I am thankful that she has invited me because she's also known to me. And I think I had her first exhibition in Delhi. I remember, and they were the very good painting in landscape, and we did very well. So thank you, Sneha. Thank you, Sneha Art Center, to invite me to speak about something. And Ravi, it will be nice to speak in Hindi or English. Yeah, whichever is comfortable for you, sir. You can do a mix of both. No problem. And now you are talking about my journey. Yes, sir. So देखिए, जहाँ मैं पैदा हुआ, where I born and brought up, वहाँ तो आर्ट का नाम ही नहीं सुना था, और अंग्रेजी भाषा पढ़ाई नहीं जाती थी, लोकल लैंग्वेज थी, भोजपुरी बोली जाती है, और अंग्रेजी छठी क्लास से एबीसीडी शुरू हुआ, और
टीचर ही नहीं थे पढ़ाने वाले, तो अंग्रेजी। तो आर्ट तो शब्द नहीं सुना, अंग्रेजी भी नहीं सुना था। बट आफ्टर ए स्मॉल एजुकेशन आई केम टू दिल्ली। माय फादर टोल्ड मी कि जाओ कुछ कुछ कमाओ, नहीं तो घर कैसे चलेगा, और तुम्हारे 4 भाई हैं, एक बहन है। और वो किसान हैं, अभी भी हैं, 100 साल के हो गए इसी साल। वाह। और मेरे पिता और माँ दोनों पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। लेकिन मैं उनको भगवान इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने जो प्यार दिया, जितना भी उनके पास था, वो 100% दिया। कुछ था नहीं, लेकिन 100% दिया, आई कैन से। सो दैट वाज बिग गिफ्ट फॉर मी। एंड उनको ऑनर करते हुए मैं दिल्ली आ गया, एंड टू गेट ए जॉब, कहीं किसी फ्रेंड के साथ ठहरना, कोशिश करना कि कोई जॉब मिल जाए। और ये बात 1977 की है। आई थिंक स्नेहा कितनी बड़ी रही होगी मुझे नहीं मालूम। 1 साल के बाद मैं पैदा हुआ था। So, अच्छा। सो एनीवे, बट आई वाज सो सो यंग, करीब 19-20 का साल का था, और मजबूरियां थी, फाइनेंशियल, तो आना पड़ा। सो आई वाज लुकिंग फॉर ए जॉब। आसान नहीं था, बट ये डिटर्मिनेशन था कि मैं जो भी एजुकेशन है उसके उसी में कोशिश करके कोई बढ़िया जॉब लूंगा। पर किसी दोस्त की सहायता से, वो एक एक ही आर्ट गैलरी उन दिनों होती थी, धूमी मल। दैट वाज द ओनली गैलरी इन कंट्री, आई कैन से। आर्ट हेरिटेज होती थी, बट अलकाजी साहब वाज ए personality who was busy in Kuwait and the Arab countries for other business, but he was a promoter. but मैं नहीं कह सकता कि वो किसी को टाइम दे पाते थे। लकीली मुझे धूमी मल में सेल्समैनशिप के लिए असिस्टेंट की जरूरत थी, उन्होंने मुझे रख लिया फॉर द टाइम बीइंग। ये था कि कुछ दिनों में थोड़ा पैसे कमाऊंगा, और फिर मैं कोशिश करता रहूंगा कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए। तो ये 77 की बात है। और करीब 2 साल में मैं उस उन दिनों उसके जो डायरेक्टर थे, रवि जैन थे। बहुत वैसा इंसान मैंने नहीं देखा। ही वाज जेम ऑफ ए पर्सन, जेम ऑफ ए नॉलेज ही हैड। ही इज नो मोर। आई एम थैंकफुल टू हिम, ही टॉट मी एवरीथिंग। सो 2 साल के बाद मुझे बैंक में नौकरी लगी, इंडियन एयरलाइंस में नौकरी लगी। मैं मेहनत कर रहा था अपने परिवार को देखते हुए। लेकिन फाइनली मेरी जो तनख्वाह थी धूमीमल में, वो इन दोनों जगहों से 200-200 रुपए ज्यादा थी। हम्म। और मुझे इन्वायरमेंट नहीं पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक टेबल और कुर्सी मिल गई थी, तो मुझे लगा था कि मैं एक बड़ा आदमी बराबर। भी बन गया हूँ। और मेरे सामने जो आके लोग बैठते थे, जिनको मैं नहीं जानता था, जानने लगा था, वो वो हुसैन साहब होते थे, सूजा होते थे, रजा साहब होते थे, गायटोंडे होते थे, तैयब मेहता होते थे, विकास भट्टाचार्य, गणेश पाए। आप सोच नहीं सकते। अब मैं सोचता हूँ कि मैं, मेरे सामने जो लोग बैठते थे, वो मेरे से सहायता मांगते थे कि भाई कौन लोग आ रहे हैं, कोई क्लाइंट आ रहे हैं क्या, हमारा शो कब लगेगा। से तो सब कुछ डिसीजन रवि जैन जी लेते थे, लेकिन मुझे ये लिबर्टी थी कि कम्युनिकेशन के लिए मैं अवेलेबल था, और सबको चाय पिलाने के लिए अवेलेबल था, सबको रिसीव करने के लिए अवेलेबल था। बट ये डेस्टिनी होती है, मैं समझता हूँ कि जिस आदमी को आर्ट का नाम ही नहीं पता है, हम्म। सुना ही नहीं है, आर्ट शब्द ही नहीं सुना है, वो आधुनिक कला के की पूरी जहां जहां इतिहास बन रहा है, रचा जा रहा है। ये आधुनिक कला का इतिहास 100 साल का होगा अधिक से अधिक। तो जो पीरियड था अमृता शेरगिल, रवि वर्मा का, उसको छोड़ दीजिए। तो उन दिनों बंगाल स्कूल के लोग जो नंदलाल बोस और राम किंकर बैज, रविन्द्रनाथ टैगोर तो एक्सपायर हो गए थे, ये लोग भी एक्सपायर हो चले थे, या बहुत बुजुर्ग थे, या फिर जामिनी राय, जितने बड़े आर्टिस्ट, सैलोज मुखर्जी, सब लोग जिसको कह सकते हैं कि बंगाल स्कूल के स्टालवर्ड्स थे।
तो वो एक्सपायर हो रहे थे, लेकिन मैं उनके बारे में काफ़ी जानकारी, उन दिनों वही बिकते थे। अभी इन लोगों का मार्केट हुसैन साहब का और सूजा का, रजा का खड़ा नहीं हुआ था, बट होने लगा था, लगातार एग्जीबिशंस हो रही थी इन लोगों की। तो मेरी कला यात्रा में कुछ भी कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल रॉ आया, रॉ जॉइन किया, वहाँ सीखने को मुझे 10-12 साल, 12 साल के करीब लगातार इतना मिला कि कैसे एग्जीबिशन लगती है, मार्केट क्या होती है, डिप्लोमेटिक मिशंस के लोग उन दिनों खरीदते थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदते थे। और लेकिन एक चीज थी कि उन दिनों जो लोग आर्ट में बड़ा नाम कमाने की तरफ बढ़ रहे थे, राम कुमार जी थे, कृष्ण खन्ना थे, वो लोग बहुत दिन रात मेहनत करके अपने फिलॉसफी को, अपने टेक्निक को डेवलप करके आगे आ रहे थे। तो वो एक ऐसी एक भारतीय कला की जो एक ओरिजिनल भावना होती है, मेहनत, खुद सीखना, खुद सोचना, दूसरे से डिबेट करके उसको इम्प्रूव करना, वो भावनाएं थी और इसीलिए शायद वो लोग बड़े आर्टिस्ट बन पाए। बट एनीवे, कट टू शॉर्ट, मेरी कला यात्रा में इतना ही है कि बहुत राह आया, डेस्टिनी ने मुझे एक अच्छे इन्वायरमेंट में डाल दिया। मुझे मेरे एक तरह से गुरु रहे वो जय स्वामीनाथन रहे। उन्होंने आर्ट के बारे में मुझे स्पेशली, उनका इतना स्नेह था कि बताना शुरू किया। तो कह रहे थे, उन्होंने बताना शुरू किया, आ, मेरे लिए वेल विशर थे, तो वो डिस्करेज करते थे कि यार इसमें कुछ है नहीं, हम्म। तुम इसको छोड़ ही दो। और लेकिन लेकिन मैं उनकी मूल भावना को समझ रहा था, उनका कहने का मतलब था कि तुम्हारा भी भविष्य क्या होगा। हम्म। बट उसी में एक दो लोग कह रहे थे कि तुम सीखो, लगे रहो, ये बड़ी चीज है। बड़ी चीज। घर वाले तो निरंतर विरोध करते रहे, एज यू नो। उनका ये सोचना था कि कहाँ ये पागलों के बीच चला गया। आर्टिस्टों के बारे में वो सोच उन दिनों मेरे समाज में यही थी। मैं उसको अच्छा मान के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट को समझने के लिए पूरी एक आर्टिस्ट को समझने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती है, वो तो खैर सब लोग थे। बट मेरी तकदीर इतनी अच्छी रही कि मैं, तब देश का कोई बड़ा नाम नहीं होगा आर्ट वर्ल्ड में जिसका मैं मित्र नहीं था, जो उन्होंने मुझे स्टूडियो में नहीं बुलाया, जिनके साथ में रात को खाना नहीं खाया, उनके साथ ट्रैवल नहीं किया, उनकी एग्जीबिशन नहीं लगवाई, ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरह से उनकी टेक्निक, उनकी फिलॉसफी, उनके दर्शन को, सारी चीजों को समझने का मुझे मौका मिला। और मेरा आर्ट के बारे में नॉलेज ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता गया। मुझे किसी टीचर की, मुझे कॉलेज में कहीं जाने की जरूरत नहीं हुई। साथ साथ मैं बाजार देख रहा था, क्योंकि मैं पुल था एक तरह से, ब्रिज का काम कर रहा था। तो इन लोगों का आर्ट जो उन दिनों भी और आज भी, कुछ लोग स्टेटस के लिए पेंटिंगें लेते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, दिखाना है, बड़ी कारें हैं, बड़ी ऑफिसेज हैं, बड़ा ब्रांड है, तो और क्या। तो स्टेटस के हम्म। लिए आर्ट चाहिए कि चलो लेट्स टॉक अबाउट हुसैन, लेट्स टॉक अबाउट सुजा, लेट्स टॉक अबाउट मंजीत बाबा, स्वामीनाथन, एक्सेट्रा। उन दिनों कम लोग थे जो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे थे, लेकिन बाद में जब एप्रिसिएशन शुरू हुआ तो लगा कि ये तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बट ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें मुझे वहां जानने को मिल रही थी। हम्म। बिगिनिंग में 77 के पीरियड में तो मोटा मोटी डिप्लोमेटिक मिशंस के लोग खरीदते थे। बाद में उन लोगों ने भी खरीदना बंद कर दिया, जो भी वजह रही हो मैं नहीं जानता। हर कंट्री में नए नए ट्रेंड आते हैं। तो लेकिन यहाँ लोग फिर ज्यादा आ गए खरीदने वाले। खैर, इसको मैं खत्म करूं कि जो जो मेरी कला में क्यों आया, और मेरी किस तरह से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ, यदि ये प्रश्न है तो आपके सामने शार्ट में मैंने सारी कहानी बता दी। मैं, कोई कोई संभावना नहीं थी दूर दूर तक। और
ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मुझे मालूम है, एक बचपन में हम एक कविता पढ़ते थे। हम्म, अयोध्या सिंह हरिऔध हिंदी के कवि थे। तो उन्होंने एक कहानी, एक कविता लिखी थी, बूंद, एक बूंद। तो उन्होंने कहानी का शीर्षक था बूंद में, और कॉन्सेप्ट ये था कि एक बूंद जो आसमान से गिरती है और सोचने लगती है कि अरे मैं तो यहाँ से तो गिर गई, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं रेगिस्तान में गिरूंगी तो क्या होगा, समुद्र में गिरूंगी तो क्या होगा, किसी तवे पे जलते हुए गिरूंगी तो क्या होगा, या कहीं पेड़ के पत्ते पे गिर जाऊंगी। वो सोचती जा रही थी, और उसी टाइम में एक हवा का झोंका आया और वो जाके एक सीप में गिर गई और मोती बन गई। तो कहा जाता है, हरिऔध जी कहते हैं लास्ट में कि लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदलों कुछ और ही देता है कर। घबराहट होती है, हमें भी घबराहट थी, ये थी वो थी। और सबसे अच्छी बात रही कि मुझे जो पर्सपेक्टिव लाइफ का था आर्टिस्टों का, जो मुझे डिफरेंट लगा आम आदमी से, वो मुझे इतना प्रभावित किया कि उसके बाद में वो कला वर्ल्ड छोड़ नहीं पाया। नौकरी 100 लगी, ऑफर हुई, बिल्कुल नहीं गया। हमारे घर वाले कहते रहे, बिल्कुल नहीं गया। और करीब करीब अब 42 साल हो गए हैं तपस्या करते करते। अभी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई एम प्राउड। इसमें एक छोटी सी एक लाइन और जोड़ दूं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से मैं ज्यादा प्रभावित हुआ बाद में, क्योंकि ये लोगों का थोड़ा सा प्रभावशाली तरीके से प्रेजेंटेशन था, और बोलने चालने में लोग थोड़ा अंग्रेजी वगैरह बढ़िया बोलते थे। तो बंगाल स्कूल इसलिए पीछे रह गया। खैर, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ और अप्रिशिएट भी किसी को नहीं कर रहा हूँ। सब लोग अच्छे आर्टिस्ट है तो अच्छा है, बस सीधी सी बात है, जहाँ आर्ट है वो अच्छा ही है। आर्ट छोटा बड़ा भी नहीं होता, सब बढ़िया होता है। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ने मुझे ब्लेस किया, उनकी सेवा जो की उसके लिए ब्लेस किया कि तुम प्रोग्रेसिव आर्ट गैलरी खोलना, जब भी खोलना। और रवि जैन के देहांत के बाद मुझे उनका परिवार में बंटवारा हो गया, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। तो फिर मैं प्रोग्रेसिव आर्ट गैलरी की स्थापना की, और उन लोगों ने मुझे न सिर्फ पेंटिंग्स डोनेट किया, बल्कि बहुत लोगों से, कलेक्टर से मिलवाया। और इस तरह से मेरी यात्रा शुरू हुई। और आई एम प्राउड दैट आई एम वन ऑफ द 4-5 टॉप गैलरीज इन द कंट्री, doing well, good turnover, relax. My son lives in Dubai. He has good connection with world auction houses and selling the painting through the auction houses. So we are not proud. We are now proud that we have done something in a very sort of small period of time. Small period of time means in a single generation, my transformation from agriculture to art is there. मैं कृषि से कला तक आ गया। So that transformation is big for me, not the money, not the other thing. Because we can just listen now the classical music only, my family also. We all the literaries we know personally, all the theater personalities, and सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ग्रोथ है, ये फेनोमेनन, हम्म, इसका कोई मुकाबला नहीं है। पैसा तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, एंड आई डोंट नो, दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट इज स्मॉल स्टोरीज माइन। आप सुपर आगे पूछे, मैं बोलता ही रह जाऊंगा, आप कुछ पूछेंगे नहीं। सुपर। ये जर्नी आपने कब सीखी? आई मीन यू वर्कड इन ऑक्शन हाउसेस आल्सो, मतलब आपको मालूम था कि ऑक्शंस कैसा होता है। सो या आपका ये जो स्किल है, कैसे पता चलता है कि वैल्यू कैसे डिटरमाइन करे आर्ट का? सो उसका प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन करे, और कैसे बायर्स को कन्विंस करे, बिकॉज यू वांट राइट, टू आल्सो बार्गेन एंड गेट द राइट प्राइस फॉर द आर्टिस्ट, और कस्टमर को भी कन्विंस करना है कि दिस इज वैल्यू फॉर मनी, दिस इज वर्थ इन्वेस्टिंग और बाइंग दिस पर्टिकुलर आर्ट
and showcasing in your office or keeping it as an investment. ये सीखा और ये कैसे करते हैं आप? हाँ, इसके बारे में बताता हूँ। सिंस मैं इसी प्रैक्टिस में रहा हूँ, तो शुरुआती के दौर में जो मैं धूमीमल से बात करूँ, तो जब हमारे यहाँ कोई क्लाइंट आता था, तो ये था कि हम देखते थे कि उसके जूते कितने अच्छे हैं, कितने एक्सपेंसिव हैं। ओके। और जब ये जूते एक्सपेंसिव हैं, तो जिस पेंटिंग को हम 1000 रुपए में बेच रहे होते थे, हम्म। उसका दाम 2000 रुपए कर सकते थे। ओके। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग कहेंगे, बड़े विद्वान बैठे होंगे और अनाउंस भी करते हैं कि वो लोग बड़े लोग हैं और प्राइसेज वही करते हैं, तो वो भूल जाएं, क्योंकि हम जूते देखकर प्राइसिंग कर लेते थे। आप समझ सकते हैं इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होगी। हम्म। तो प्राइस तो वही है उन दिनों की, जो जो हमने बोला और वो दे सकता है, वो प्राइस है। हम्म। हमने बोला ही नहीं तो प्राइस भी नहीं है, और वो नहीं दे सकता है तो भी प्राइस नहीं है। एनीवे, अब रही बात कि आज की बात करें, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, तो किसी भी पेंटिंग का रेलेवेंस क्या है, उसको देखिए, हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट करते हैं, 99% आर्टिस्ट को मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि आर्ट होता क्या है। पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन पेंटिंग क्या होती है, कुछ बनाना पेंटिंग नहीं होती है। वो एक जीवन है, जैसे कविता पोएट्री होती है। तो वो उसमें समाज का सुख दुख, टेक्निक, आपकी एजुकेशन, हमारे कंट्री की पूरी सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, सब कुछ मिला के आता है, और उसके बाद एस्थेटिक आता है, ह्यूमर आता है। इट इज नॉट ए जोक, इट्स नॉट समथिंग कि बस आप बीएफए एमएफए करके निकले और आप आर्टिस्ट बन गए। बिल्कुल नहीं, ये होता नहीं है। बड़ा आर्टिस्ट बनने के लिए ये क्राइटेरिया कभी काम नहीं करेगा। तो जब इतना करके, और हमेशा संघर्ष में बढ़िया पेंटिंग बनती है, जब आप फाइट कर रहे होते हैं, जब आप लग्जरी लाइफ में नहीं होते हैं, जब आप अपने जीवन के मूल्यों के लिए फाइट करते हैं, जैसे हर जगह होता है, तो वो उस टाइम आप अच्छा कुछ कर पाते हैं। यहाँ क्या है, पूरा वर्ल्ड में जनरली देखा गया है कि एक टेक्निक कॉपी हो रही है, सब्जेक्ट कॉपी हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, तो और उसके बाद मीडिया से हेल्प लेके, कुछ बड़े लोगों से हेल्प लेके सोचते हैं कि हम रातों रात बड़ा आर्टिस्ट क्यों नहीं बन पाते। बट जब हम किसी पेंटिंग को ऑक्शन हाउस को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए आर्टिस्ट को करते हैं, तो ऑक्शन हाउस वाला कहता है कि यस मिस्टर सिंह, हम चेकबुक लेके आते हैं, और मेरे 5 लोग बैठे हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन है, करेंगे। तो वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं कि भाई इसका रेलेवेंस क्या है, इंडियन एस्थेटिक से क्या लेना देना है, ग्लोबल कॉन्टेस्ट में इसको कैसे समझा जाएगा, इसमें टेक्निक की क्या उच्च मापदंड है, आर्टिस्ट ने इसमें क्या एक्सप्लोर किया है, कौन सी फिलॉसफी है जिसकी वो बात कर रहा है, जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा है। तो साहब, इंटरव्यू के लिए हम आते हैं, आर्टिस्ट बड़ा बनना चाहता है। अब दूसरी बात आती है कि आर्टिस्ट के साथ हमारे रिलेशन डेवलप होने चाहिए, तब हम आर्टिस्ट की वकालत करें। तो मोस्टली आर्टिस्टों के बारे में, गैलरीज के बारे में भी बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि सोचते हैं गैलरी वाले घमंडी होते हैं, टाई लगा के, और मोस्टली 99% गैलरी वाले टाई लगा के घूमते हैं। और मैं बताऊं कि मोस्टली 99% गैलरी वाले शॉपकीपर्स हैं, उनको नॉलेज नहीं है। न तो इमेंस आर्ट की डीपली नॉलेज है, और न आर्ट मार्केट की भी डीपली नॉलेज है। तो यहाँ पे सब कुछ सुपरफिशियल तरीके से चल रहा है अभी, इसीलिए ये मार्केट अभी तक ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और अभी तक आर्टिस्टों को भी बेचारों को भुगतना पड़ रहा है। मैं बेचारा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग बड़े लोग हैं, लेकिन फाइनेंशियली जो सिचुएशन होती है, वो वही जानते हैं, और
उनका दुख दर्द मेरे तक, मुझ तक पहुंचता रहता है। तो वो एक बात है जहां मैं हमेशा दुखी रहता हूं। तो अब आई बात कि आप उसको कैसे करते हैं। यदि मैं आर्ट भी समझता हूं, बाजार भी समझता हूं, तो इवैल्यूएशन के बारे में कुछ सोच सकता हम्म, हूं। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब आर्ट मार्केट बहुत बूम पे था, तो हमारे दो चार कलेक्टर्स ने कहा कि सिंह साहब आप कंटेम्प्रेरी आर्ट हमें ऑफर नहीं करते हैं। तो मैंने कहा सर मैं कंटेम्प्रेरी अभी नहीं कर रहा हूँ, मॉडर्निस्ट को बेच रहा हूँ, जो हुसैन है, सुजा है, रजा है, राम कुमार है, कृष्ण खन्ना है, तैयब है, गाटुंडे हैं, सबावाला है, विकास है, गणेश फाइन है। आप लोग ना ये बड़े नाम है, ब्लू चिप्स है, ब्लू चिप्स ऑलरेडी आप ऑक्शन हाउसेज में इनकी प्राइसेस देख चुके हो। तो आप टेस्टेड मान लो ना। आप वो सामान क्यों खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में अभी मैं खुद ही नॉलेज इतना गेन नहीं कर पाया। नहीं नहीं, दाम बढ़ रहे हैं यार, ये है वो है। अच्छा, मुझसे छुपा के उन लोगों ने करोड़ों करोड़ों का खरीद दिया कंटेम्प्रेरी। हम्म, जब रिसेशन आया तो अचानक जो 5-5 करोड़ के, 6-6 करोड़ के कंटेम्प्रेरी बिक रहे थे, वो 20 लाख से 25 लाख पे आ गए। मैं नाम नहीं लूंगा, बट सबको पता है। यदि आर्टिस्ट सुन रहे हैं तो उनको मालूम है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तब उन क्लाइंट्स ने मुझे कहा कि सिंह साहब आप तो आप पहले बताओ कि आप पढ़े कहाँ हो। वो सब तो ऑक्सफोर्ड और ये में पढ़ के आए हुए हैं और सबको नॉलेज है, सब बिजनेस मैनेजमेंट के लोग हैं। तो मैंने कहा मैं तो चरवाहा विद्यालय से पढ़ा, भैंस चराता था और पढ़ता था जो टाइम था। तो बोले नहीं, बोले प्राइसेस तो गिर गई। तो मैंने ये बताया कि जिसकी रीसेल वैल्यू ही स्टेब्लिश नहीं हुई है, उसको आप परचेज कर रहे हो, आप कौन से हवा में बात करो। कहाँ कहाँ कैम्ब्रिज के पढ़े हो, मुझे तो नहीं समझ आता। हम्म, तो खैर उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उसका घाटा अभी भी सह रहे हैं, सहना ही पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब है कि इवैल्यूएशन आपको एक जनरली बहुत डीप नॉलेज से आती है। इट इज नॉट वेरी सिंपल टू, ये जोक भी हो सकता है जूते वाला, लेकिन एक बड़ी गहरी बात हो सकती है कि मैं उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं जानता हूं। true. तो हाउ हु आई एम टू Judge. Okay. इवैल्यूएट ए पेंटिंग। तो दैट्स इट सर। सॉरी थोड़ा एलोबरेट हो गया, मिलता नहीं है। नहीं, बिकॉज ये एग्जाम्पल्स के बिना हम लोग को भी मतलब उतना आइडिया है, स्पेशली somebody who's not from art or who's an artist but doing this at home and want to progress on an artist on a long run. एंड देयर आर मेनी थिंग्स। आप मुझे इसमें तो एक सेकंड ऐड करूंगा। आपका Mhm. प्रश्न ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रश्नों से सीख पाता हूँ। मेरे लिए बोलते रहना तो, और बोलना मेरे लिए सिंपल इसलिए है कि मेरा ये सब फ्लोर का एक्सपीरियंस है। मैं कुछ भी कहीं से किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। उसमें क्या है कि जैसे अभी बहुत सारे आर्टिस्ट कंप्लेंट करते हैं कि प्रोग्रेसिव आर्ट गैलरी तो प्रोग्रेसिव ग्रुप एंड टॉप लाइन आर्टिस्ट को 20 आर्टिस्टों में ही काम करती है, आप हमें कब सेलेक्ट करेंगे। Hmm. तो हमने एक क्राइटेरिया बनाया, 20 पॉइंट बनाया कि इस पॉइंट को आर्टिस्ट क्रॉस कर जाए, पास कर जाए, तो हम सेलेक्ट करते हैं। हमें भी 10 आर्टिस्ट चाहिए जो आगे भविष्य में उनको प्रेजेंट करेंगे, प्रमोट करेंगे, स्टॉक रखेंगे। तो हमने पहला ये रखा कि भाई बीएफए एमएफए से लड़के आते हैं, तो चलो एजुकेशन पहला क्राइटेरिया आया कि एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल दूं। हम हुसैन साहब एक बार इंदौर जा रहे थे ट्रेन से, तो रेलवे स्टेशन पे उन्होंने कहा कि ये कोई किताब बेच रहा था 50-50 पैसे की, उन्होंने कहा ये सब खरीद लो। हमने कहा ये कौन, वो कोई किताब है, ये क्या खरीद लो। सत्य कथा है, तोता मैना की कहानी है, ही रांझा है। तो कह रहे हैं अरे असली इंडिया यही है, इसको जानना पड़ेगा मुझे, तुम खरीदो। ये भी जाने बगैर हिंदुस्तान को मैं नहीं जान सकती। सही। तो एजुकेशन में क्या आता है कि हम अपने ट्रेडिशंस को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी सिविलाइजेशन को, अपने माइथोलॉजी को, अपने
सोसाइटी को, इनको समझे बगैर यदि कहते हैं कि हमने एजुकेशन ले ली है, तो हमारे जो आर्टिस्ट आते हैं उसमें 99% वहीं कट ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो चीज नहीं है जो दर्शन, भारत का दर्शन है, जो भारत की आत्मा है, उसको उन्होंने पढ़ा हो, कालिदास पढ़ा हो, कुमार संभव पढ़ा हो, शाकुंत अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा हो, नहीं, कुछ नहीं। तो एक तो ये बात आती है। फिर दूसरी बात, इसमें 20 पॉइंट नहीं जाऊंगा, तीन तीन पे ही खत्म कर दूंगा। दूसरी पॉइंट आता है कि आपने स्किल डेवलप, प्रैक्टिस कितनी की है, स्किल डेवलपमेंट कितना है। 2 साल में आप कहते हैं मैं तो बड़ा आर्टिस्ट हो गया, वो मुश्किल। तो आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए, एक डांसर भी परफॉर्म करने के लिए आती है तो गुरुजी कहते हैं कि 10 साल तुम प्रैक्टिस करो, उसके बाद सोचेंगे। तो एक पता लगता है कि स्किल डेवलपमेंट में हुसैन तो है नहीं कि नेपकिन पेपर भी मिला तो उस पर भी ड्राइंग कर लिया। वो 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 पैशन, वो जिद, वो पागलपन, वो कहाँ से लाए? तो 99% फिर गायब हो गए। फिर ये होता है कि भाई तब सब्जेक्ट ही कहाँ आएगा, यदि आपकी एजुकेशन ही ठीक नहीं है तो सब्जेक्ट आप कहाँ से लाएंगे? वो सब छोड़ दीजिए। फिर प्रेजेंटेबल कितना है, पता लगता है कि वो जो कर रहा है उसके बारे में नहीं पता है, कर तो रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ ऊपर ही बताएगा, मैं वहां गया देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने बना दिया। अरे, आर्टिस्ट जो होता है वो भविष्य वक्ता होता है, वो तो 50 साल आगे की बात कह देता है अपने अनुभवों से, सोसाइटी को देख के, एक्सपीरियंस। इसीलिए तो वो आइसोलेटेड रहता है, इसीलिए तो वो डेप्थ में रहता है, इसीलिए तो उसको पागलपन का दर्जा दिया जाता है। कोई पागलपन का दर्जा कोई दे तो बहुत बड़ा गिफ्ट है साहब, कोई आसान बात नहीं है। एक एक विचारों से हम इतने लैस हैं कि लोगों, बाकी चीजें इग्नोर होती हैं तो लोग कहते हैं पागल है। तो एक विचारधारा तो कूटी हुई है। अब पागल को कोई ठीक नहीं करता, बट क्यों हुआ होगा पागल, इस पे तो कोई जाता नहीं है। एनीवे, लास्ट है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, शाहरुख खान जैसे हजारों लड़के बढ़िया पर्सनालिटी के घूमते हैं, बट शाहरुख खान को प्रयास करके यश चोपड़ा से मिलना होता है, उनको चाय भी पिलानी पड़ती है, पानी भी पिलाना पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे संपर्क में आने पे उसके टैलेंट को देखते हैं, ये लड़का इस तरह का काम कर सकता है तो चलो भाई इस पे एक स्टोरी लिखो, ऐसा बनाते हैं, इसको देखते हैं। आर्टिस्ट लोग को डायरेक्टर के संपर्क में तो आना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर के संपर्क में आना पड़ेगा, तो एक रिलेशन डेवलप होगा, फिर हम टैलेंट को देखेंगे, तब कहेंगे कि भाई इस पे बात करते हैं। और तो आजकल वो डायलॉग की बड़ी कमी हो गई है, ऊपर ही तरह से मिले, किसी एग्जीबिशन में मिले, हेलो हाय हुआ और चल पड़े अपने अपने रास्ते। तो चीजें हैं जो, मैं कहता हूँ बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इस इंडियन आर्ट सिस्टम को से, तो अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंडियन मार्केट, आर्ट मार्केट तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। वर्ल्ड का कोई भी टॉप कलेक्टर नहीं है जिसके पास अभी, हुसैन 100 टॉप कलेक्टर को मानो तो अभी ना हुसैन साहब के काम है, ना सूजा के हैं, ना रजा के हैं, ना किसी। अभी तो एक कलेक्टर 2-4 हजार करोड़ रुपया लेके आ जाए तो यहाँ अभी तूफान आ जाएगा। तो वो तो आए नहीं, हम अब उनको कोशिश कर रहे हैं समझा, क्योंकि एस्थेटिकली इंडियन आर्ट वर्ल्ड में बहुत रिच है, हजारों, मतलब सैकड़ों कंट्रीज से रिच आर्ट हमारा है। बट वकालत तो चाहिए, उन तक पहुंच, अप्रोच तो होनी चाहिए, हमें समझाना तो पड़ेगा। संजोग से जो हमारे लीडर्स हैं आर्ट के, कहते हैं कि वो लीडर्स हैं, वो खुद ही कहते हैं हमें कोई झगड़ा भी नहीं है, हम तो मान के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी कहीं तक पहुंचे नहीं। ये अफसोस होता है
कि कहीं से गेम शुरू नहीं किया इंडियन आर्ट मार्केट। तो अब इंडियन आर्ट मार्केट शुरू नहीं हुई है, बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे हिंदुस्तान में ही इतनी पॉपुलेशन है, बहुत स्कोप है। सवाल ये है कि एक तरीके से डिफरेंट। एक मैनर में ये सब डेवलप होना चाहिए। सॉरी सर, बहुत बोल रहा हूँ। नो सर, आई मीन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, स्पेशली द एग्जांपल ऑफ शाहरुख खान, वैल्यूएशन। आई मीन बहुत लोग तो बोलते हैं कि शाहरुख खान को इतना पैसा मिलता है, बट दैट इज ओनली आफ्टर लाइक 10-20 इसका years of experience and struggle. And एब्सोल्यूट जो most important thing है relationship building, like the relationship देखिए, he has to maintain with the production team, एंड directors, बिकमिंग all that. लॉयल्टी हाँ, वो नहीं है तो मतलब ट्रस्ट फैक्टर वो भी नहीं होता। यू हैव टू बी अराउंड विद द टीम हु कैन शोकेस यू। पता नहीं है, आई मीन जस्ट क्विक मिनट मीटिंग गैदरिंग हो गए, हाँ मैं 10 मिनट बात कर लिया, मेरा प्रेजेंट कर दिया व्हेन दे कॉल, दैट्स आई नथिंग, थिंक दैट विल नॉट वर्क आउट। दैट्स नॉट That's a very good example. डेफिनेटली। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया हुआ है थैंक रिलेटेड यू टू सर। शाहरुख खान, बिकॉज हाँ, मुझे दैट। मुझे इसी तरह के सिंपल एग्जांपल आते हैं सर, अच्छे आते नहीं। सो आपने बहुत सारे मतलब मास्टर्स से आपने मिलके काम किया है, लाइक रजा जी सर, एम एफ हुसैन है ना, उनके पर्सनालिटीज कैसे थे? मतलब आप एवरी पर्सन हैज अ evaluation, like if I have to define Snehalata ji, I'll have my own definition for Snehalata ji. राइट। Like that, what is your evaluation for perception on that personality? Raza sir, MF Hussain sir, and other eminent personalities whom you worked with. सर मेन चीज तो यह है कि जो लाइफ के बारे में परसेप्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए। जो सोचने की का दृष्टिकोण है, जो देखने का दृष्टिकोण है, जो रिसीव करने का दृष्टिकोण है। देखिए, हर चीज आर्ट है। हुसैन साहब कैसे बैठते थे, क्या कपड़े पहने हैं, वो उनका कपड़ा भी स्टाइल में आता था। हाथ में ब्रश लिए हैं, दैट इज आल्सो ए फैशन। जूता नहीं पहनते हैं, वो फैशन है। जब एक बार बनारस गए थे, बहुत पहले की बात है। उनको भी हमारी तरह से पहले अंग्रेजी नहीं आती थी, बहुत तो बोलने के लिए कह दिया गया। राम कुमार थे तब। मुझे ये बताया गया, क्योंकि कई चीजें हैं जो नहीं है, लेकिन जिन्होंने बताया वो 2-3 जगहों से मैंने उसको क्लियर किया और सही निकली। तो हुसैन साहब को बोलने के लिए कह दिया। हुसैन साहब 4 मिनट तक चुप रहे। Hmm. अंग्रेजी में बोलना था, बोले ही नहीं। उसके बाद उठ के चल दिए। कहते हैं मुझे मुझे ये भी बात है, जब मैं इंदौर गया था और एक स्टडी के लिए कोई मॉडल आती है और बच्चे करते हैं, तो देवलालीकर उनके गुरु थे। वो उनकी एक संस्था है अभी भी आर्ट का, वहाँ स्कूल था, अब है कि नहीं पता नहीं। तो उन्होंने लड़की के ऊपर ही कलर लेके ब्रश लगाना शुरू कर दिया और उसी दिन स्कूल से निकाल दिए गए। तो एक इस तरह का जो नौ रुक पाने वाला विचार होता है, करेज होती है, वो कहीं रुके ही नहीं। कहीं मतलब यदि वो हमारे घर आए हैं, रात को रुके हैं, और कमरे में यदि कैनवस और पेपर नहीं है, तो हमारा तकिया भी रंग डालेंगे, दीवार भी रंग डालेंगे, और जो भी मिलेगा उसको रंग देंगे। तो हमें तो कागज भी रखना पड़ेगा, और हमारा ही फायदा होता था। वो 3 बजे 4 बजे उठ के पता लगता था कि 4 कैनवस तैयार हैं, 10 वाटर कलर तैयार हैं, Wow. और मेरे तकिया और बेडशीट नहीं खराब हुई। सो कहने का मतलब आप एक ही से समझ सकते हैं कि किस तरह का है। मुझे याद है, मैं उनके घर खाने के लिए गया था। वो संडे को बिरयानी बनती थी, तो बच्चे लोग जंगपुरा में रहते थे। थोड़ा पहले की बात है, ये 80s की बात है। तो बोले कि तुम लोग खाना खा के, और बगल में सिनेमा, इरोज सिनेमा है, बोले आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ, हम पिक्चर दिखाते हैं। तो साहब, बच्चों को तैयार होने में टाइम लगता है। तो जब हम पहुंचे तो नहीं थे। तो उन दिनों तो मोबाइल भी नहीं था। एनीवे, ढूंढा डाढ़ा, फिर हम लोग गोलगप्पे पानी पूरी खा के वापस आ गए। साहब,
7 दिन के बाद घर पे फोन आया कि मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। हम्म। तो ये है क्या किसी में? कोई ऐसा भी है क्या? चाय पी रहे हैं तो कहते हैं उसमें आधी चाय आधी कॉफी मिला दो, मारा मारी पीनी। तो कहने का मतलब मैं ये नहीं कहता, इसी तरह से वो एक बहुत ही बेहतरीन सेल्समैन थे। मैं उनको कहता था कि हुसैन साहब, आपको पता है कि सबसे महंगी हुसैन की पेंटिंगें कौन बेचता है वर्ल्ड में? कहते थे कौन बेचता है? तो मैंने उनको बताया कि ओनली हुसैन, बाकी हम भी सस्ते बेचते हैं, आप ही से लेते, वो बेच लेते हैं। तो दैट इज द सेल्समैनशिप। वो एक बार उनके साथ आगरा जाना हुआ, तो बोले कि चलो आगरा चलना है। मैं गाड़ी में बैठ गया, मेरे पास 150-200 रुपए होंगे, उन दिनों की ही बात है। जाके कहते तुम्हारे पास कुछ पैसा है क्या? मैंने कहा मेरे पास वैसे ही पैसे नहीं है, 100-150 रुपए ही लेके मैं चल पाता हूँ इससे ज्यादा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पेट्रोल खत्म होगा तो फिएट गाड़ी थी। गए तो कह रहे हैं ताज में ठहरेंगे। मैंने कहा पैसा है नहीं, ताज में ठहरेंगे, देख लो तमाशा। उन दिनों क्रेडिट कार्ड वाला भी नहीं था। anyway, गए वहां, ठहरे जी होटल में। साहब नौ सिर्फ ठहरे 2 दिन, कुछ काम था उन्होंने किया। जीएम ने उनको 1 लाख रुपए ले आके दिया, उसमें से 20,000 मुझे दिए, 80,000 अपने पॉकेट में रखे, हम लोग दिल्ली आ गए। तो आर्टिस्ट में वो कला कि बिना पैसे के जा रहे हैं। कला नहीं, वो फाइव कॉन्फिडेंस, स्टार मतलब कितने कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस आज मैं कमा लूंगा या 2 दिन में मेरा ये आ जाएगा। एंड कुछ भी हो जाएगा, हम कर लेंगे, हमें परवाह नहीं है। तो पैसे भी लेके उल्टे आ रहे हैं, काम भी करके आ रहे हैं। तो अब मैं हुसैन साहब के बारे में क्या बताऊं? सब लोग डिफरेंट थे। रजा साहब डिफरेंट थे। रजा साहब पेरिस में रहते थे, ज्यादा उनका टाइम बीतता था यहाँ। तो जब बुजुर्ग हो गए तो आए, लेकिन उनकी उनकी जो दिनचर्या थी वो एक तरह से फ्रांस में रहने वाले आदमी की तरह से थी, जब तक उनकी पत्नी थी। लेकिन वो सोचते इंडियन थे, इसीलिए एक बात हुई। सूजा का पर्सपेक्टिव अलग था। सूजा वाज मास्टर, अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग थॉट प्रोसेस। वो ही वाज लिटिल हायर देन हुसैन साहब। मैं उससे सूजा के बारे में बोलूं तो मुझे 3 घंटे बोलना पड़ेगा, 4 घंटे बोलना। तो कहने का मतलब है कि इनकी सबकी पर्सनालिटीज अलग अलग, बट उसमें भय नहीं है, चिंता नहीं है, किसी को प्रूव नहीं करना है, कॉन्फिडेंस है, और अपने अपने सिद्धांत पे, अपने जो एजुकेशन है, जो अपना लहजा है, जो अपना बेसिक्स है, उस पे स्टैंड रहने वाले लोग, लगातार उसमें इम्प्रूव करने के लिए एक क्रिटिसिज्म को भी वो लोग अप्रिशिएट करते थे। अभी किसी एग्जीबिशन में जाके आप किसी आर्टिस्ट की एग्जीबिशन में कोई बात कह दीजिए जो थोड़ी सी उसके निगेटिव हो, उसके अच्छे के लिए हो, आप देखिए दूसरे दिन आपको जवाब मिल जाएगा कि आज के बाद तो आपको बुलाएंगे नहीं, वो तो क्रिटिसाइज करते हैं। पहले लड़ाई होती थी, शाम को ये होता था कि हाथापाई नहीं हुई, और दूसरे दिन सब लोग शाम को आके बैठते थे। बैक टू बिजनेस। वो बैक डिबेट टू होता था, बिजनेस। वो डिबेट होता था, एक दूसरे को इम्प्रूव करने का वो जुनून रहता था। अब वो चाहिए ना। अभी पर्सनल हो गया, मतलब कुछ भी बोले तो ऐसा हो जाता है, वो आर्ट के बारे में नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करते तो उसके हाँ, लिए क्रिटिसाइज किया हुआ है। एंड हाउ टू इम्प्रूव। सपोज हम्म। एक आर्टिस्ट का प्रश्न है, मुझे किसी ने पूछा हाउ टू इम्प्रूव सर, मैं इम्प्रूव कैसे करूं? तो मैंने कहा कि दो ही एक तरीका है, या तो अपने से सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको दिखाने जाओ काम लेके, या क्रिटिक हैं उनसे डिस्कशन करो। तो बोले वो टाइम नहीं देते हैं। मैंने कहा अब टाइम लेना मेरा काम थोड़े ना, तुम्हें जाना पड़ेगा। मैंने एक को भेजा भी, हुसैन साहब के पास ही भेजा है, बड़ा नाम है अब उनका, बॉम्बे रहते हैं। तो हुसैन साहब ने कहा जानते नहीं थे, बोले लेके चलो यहाँ से, ये मेरा काम थोड़े ना। तो फिर उन्होंने लैंडलाइन से फोन किया कि वो तो देखे ही नहीं, भगा दिया। मैंने कहा यही कमी है,
फिर जाओ और नहीं देखेंगे तो सीढ़ियों पे छोड़ के आ जाना हम्म। काम को। और वो गए साहब, सीढ़ियों पे छोड़ के भाग आए, बोले साहब अब जब तक नहीं देखोगे मैं ले नहीं जाऊंगा, और मुझे बता देना मेरा पीछे नंबर लिखा हुआ है। फिर देखे वो, फिर बोले ठीक कर रहे हो, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक दो बार और दिखाए, और उन्हीं ने अपने शब्दों में बताया, उसी आर्टिस्ट ने, कि मुझे किसी कलेक्टर को हुसैन साहब ने रिकमेंड किया कि इसको फोन करो, ये लड़का अच्छा काम कर रहा है। वाह, नाइस। तो कैसे ग्रो करोगे? मतलब देयर शुड बी सम काइंड ऑफ, इसमें कोई बहुत सारी स्ट्रेटजी नहीं बनानी पड़ती, सिंपलिसिटी से बहुत सारी चीजें हो जाती, यू कैन मेक समथिंग। हाँ, आप इंडियन आर्ट को बहुत नज़दीक से आप जानते हो, एंड यू हैव सीन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इंडियन आर्ट, मतलब राइट। बहुत सालों से आप इसमें हो, आई मीन कपल ऑफ डेकेड्स। तो और कुछ आता नहीं साहब, या तो मैं आर्ट जानता हूँ या खेती करना जानता हूँ, और कुछ नहीं आता। सो ये इन आर्ट्स में अभी कौन सा ट्रेंडिंग है? नए नए जो आ रहे हैं आपके पास, जो कलेक्शन है वो दोज आर लाइक डेफिनेटली डायमंड्स, बट आप हाँ, किसको? मेरे पास दोनों कलेक्शन हो गए। मैं बहुत ही, मेरी टाइमिंग जो एंट्री थी ना, एंट्री की टाइमिंग आर्ट वाले में बहुत परफेक्ट थी। तो मैं बंगाल स्कूल भी कलेक्ट कर पाया, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर राम किंकर वैद, नंदलाल बोस, जामिनी राय, सैलोज मुखर्जी, सारे आर्टिस्ट कर पाया। तो जो 9 ट्रीजर्स हैं, कंट्री ने 9 आर्टिस्टों को नेशनल ट्रीजर उनके काम को घोषित किया है। तो 9 के 9 का कलेक्शन हमारे पास है, अच्छा खासा कलेक्शन है। और उसके बाद हम मॉडर्निस्ट जिसको कहते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप और उनके एसोसिएट जो रहे, जिसमें हुसैन साहब हैं, सुजा, राम कुमार, रजा, गायटोंडे, तैयब, और बंगाल के भी मॉडर्निस्ट हुए हैं, गणेश पाइन हुए हैं, विकास भट्टाचार्य हुए हैं, सोमनाथ हुए हैं। तो कुल मिला के देश भर में 10-20 आर्टिस्ट हैं जिनको मैं, मंजीत बावा हैं और तमाम, उनको मॉडर्निस्ट कहेंगे। तो उनका अच्छा कलेक्शन है। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़े कवि ने पूछा था कि आजकल मॉडर्न आर्ट कैसा हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आजकल कविताएं कैसी लिखी जा रही हैं, तो बोले बकवास। तो मैंने कहा अब मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा। तो बहुत कुछ बकवास हो रहा है। उसके लिए बहुत, देखिए, लोग कहते हैं कि ये इस फील्ड में किसी आर्टिस्ट को कोई जबरदस्ती नहीं धकेलता है। जितने आर्ट में आए हुए लोग हैं अपने मन से आते हैं। माँ बाप भी नहीं, माँ बाप तो कभी नहीं कहेंगे कि तुम आर्टिस्ट बन जाओ। तो खुद ही आए हो तो करो ना। थोड़ा इसमें शॉर्टकट नहीं होता है, इसमें तपस्या है, ये साधना है, तो करना पड़ता है। अब सबको नेम और फेम चाहिए, पैसा चाहिए बहुत जल्दी, सब रातों रात चाहिए, तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं। तो लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि अभी इस टाइम में खराब समय चल रहा है। कुछ आर्टिस्ट डेफिनेटली बढ़िया कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि वो जल्दी करेंगे, और मैं जल्दी समझ पाऊंगा तो उनको मैं डेफिनेटली अपने बैनर पे, अपने प्लेटफॉर्म पे लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहुत कम, हमें 10 साल हो गए, 10 आर्टिस्ट चुनने की जरूरत है, अभी तक 2-3 भी नहीं पूरे हो पाए हैं। तो इसी से हमारी मजबूरी का को आप समझ सकते आप जब आर्ट कलेक्ट करते हैं, मतलब जो आपके पास अभी डायमंड्स है, मतलब जो पुराने आर्ट है जो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनको कैसे प्रिजर्व करते हो? बिकॉज ये आर्ट में आई डोंट नो, मतलब एक्सपायरी कैसे होती है, मतलब सम ऑफ देम आर लाइक हैव टू बी ट्रीटेड, ऐसा कुछ रहता है, उनको कैसे आप सेफली प्रिजर्व करते हैं? हाँ, इनको प्रिजर्वेशन, एक हमारे देश में जो मौसम है, वो मॉइस्चर हो जाता है। बॉम्बे में जैसे मानसून सीजन में बहुत हम्म। मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर जितने पेपर वर्क हैं, उसको बहुत तेजी से ये करता है, लगता है। और इसको प्रिजर्वेशन की जरूरत होती है। यू हैव टू हैव ए वेरी प्रॉपर स्टोरेज,
जहाँ वेंटिलेशन भी हो, टेम्परेचर कंट्रोल होता हो, एंड पेंटिंग्स ऐसी हैं कि आपको अ, हमेशा देखते रहना पड़ेगा। और यदि आप डब्बा बंद करके रखते हैं कहीं, तो मेरे ख्याल से आप आर्ट लवर नहीं हैं, प्यार नहीं करते। हम हमारे घर में 15-20 दिनों में सारी पेंटिंगें चेंज होती रहती हैं, स्टोरेज में गई, आई, तो हम कॉन्सेप्चुअलाइज करके चलो अभी बंगाल स्कूल लगा लो, अभी प्रोग्रेसिव ग्रुप को लगा लो, अभी बाकी मॉडर्निस्ट को लगा लो, अभी किसी कॉन्सेप्ट को लेके लगा लो। तो एंजॉय करते रहते हैं, उनके सामने बैठ के कॉफी पीते हैं, तो वी फील प्राउड आल्सो एट द सेम टाइम। और आप जैसे लोग घर आते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, और आपको देख के हम और थोड़ा-सा उत्साहित होके बातें भी करते हैं कि देखो हमारे पास ये, कहते नहीं है लेकिन मन से तो लगता है। और मुझे आश्चर्य है, हम जैसे आदमी जो ₹200 और एक कंबल लेके गाँव से आया था, बहुत पृथ्वीराज रोड और बड़े अच्छी-अच्छी जगहों पे रहने वाले लोग वो चीज़ें नहीं इकट्ठा कर पाते, बाय द वे, जो लकीली हमारे पास है। लेकिन जो भी हो, इनको अपनी दीवार पे रखा जाए, सामने रखा जाए, देखते रहा जाए, उनके साथ आपका अटैचमेंट होना चाहिए, और यू फील प्राउड ऑफ द सब्जेक्ट टू द आर्टिस्ट with the relevance of the art, so that you can showcase that you have collected, you are a collector, and that's what it is. सर आई एम डन विद द क्वेश्चन, बट एक मन की बात, आई मीन रवि की मन की क्वेश्चन एक है, वो पूछ लेते Sure, sure, हैं। sure. जब भी एक्सपेंसिव आर्ट का डिस्कशन आता है, हम लोग मूवीज में देखते हैं कि वो चोरी हो जाती है, या तो ऋतिक रोशन धूम मूवी की तरह वो चोरी करता है, मतलब बहुत सारे इंग्लिश मूवीज में तो दिस इज अ कॉमन थिंग, मतलब ही इज स्टीलिंग वेरी एक्सपेंसिव आर्ट। तो हैव यू एक्सपीरियंस्ड, ऐसा होता है आपके एक्सपीरियंस में, कभी हुआ है कि आर्ट चोरी हुई है? मेरे साथ तो नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हम बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े टॉप बिजनेस टाइकून के तरह से हमारा नाम नहीं है। तो हमारे मिलने वाले लोग भी जानते हैं कि सिंपल आदमी है तो सिंपल चीजें ही होगी। तो हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो सर्वेंट्स भी हैं उनको नहीं मालूम कि इनकी वैल्यूज क्या हैं और ये है। तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं लकी रहा हूँ, लेकिन वी आर क्वाइट अलर्ट आल्सो या दैट एनीथिंग शुड नॉट गो एनीवेयर इन द रॉन्ग हैंड। और हमारे यहाँ एक तरह से, और मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, आई एम बायर ऑफ गुड आर्ट। तो यदि हमारे यहाँ से कहीं जाएगी ना, तो दूसरे दिन शाम तक बिकने के लिए हमारे पास आ जाएगी। नाइस। So I'm lucky enough that I will get it back. I've heard that you're working on desire management. What is desire Di- management? Not desire, that is disaster management, Disaster management. Okay, sorry. आपदा प्रबंधन जिसको कहते हैं। देखिए, आर्ट में काम करते हुए, सिंस वी आर हैप्पी एंड डूइंग वेल, तो ये था कि सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैं सोचा मैं किस फील्ड में काम करूं। तो पता लगा कि जो जो आपदाएं आती हैं हमारे देश में, बाढ़ है, आग है, ये है, ठंड है, लू है, तमाम हर चीज से लोग मरते हैं। अर्थक्वेक आ सकता है, अभी तमाम कोरोना आपके सामने ही सब हुआ। तो हमने सोचा कि हम एक एक फाउंडेशन बनाते हैं और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो फाउंडेशन बनाए और बहुत रिसर्च किया, जो खाली टाइम, और सबसे अच्छी बात होती है कि आप इस तरह का कुछ काम करते हैं तो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसमें हम आवारागर्दी करते हैं, वो छूट के थोड़ा कहीं और फोकस हो जाता है। तो हम, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हम कहीं उसको यूज कर रहे होते हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च किया और लोगों से बात की, और फाइनली, तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत वास्ट एरिया है। इसमें मतलब सीधी बात करूं, यदि अर्थक्वेक दिल्ली में आ जाए, तो 85% बिल्डिंग्स जो हैं वो मेसन्स बिल्डिंग है, स्ट्रक्चरल उनका वो नहीं है, फॉर्मेट नहीं है। नई जो बन रही हैं उनका है, जो आर्किटेक्ट्स बढ़िया डिजाइन करते हैं एंड देन वो बनती हैं। बाकी सब पुरानी है, 6 इंच की दीवार सबने खड़ी कर दी है, और ये,
और जमुना पार एरिया जो कि बहुत लोग, करोड़ों के करीब लोग रहते हैं, वो जमुना की गीली मिट्टी पे बना हुआ है। यदि हम्म, वो अर्थक्वेक आता है तो वो कुछ भी हो सकता है। तो कैजुअलिटीज बहुत होंगी। तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनते हैं, घर के भी डीएम प्लान होते हैं, और शहर के भी होते हैं, ब्लॉक के होते हैं। जितनी लाइफलाइन बिल्डिंग है सबके डीएम प्लान होने चाहिए कि हाउ टू रेस्क्यू, हाउ टू मैनेज द फर्स्ट एड, हाउ टू असेंबलिंग पॉइंट कैसे होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होना चाहिए, मेडिकल असिस्टेंट कैसे पहुंचना चाहिए। तो ये अर्थक्वेक की बात मैं क्या करूं, इतना इतना बड़ा एरिया है जो काम करने को, कि पूरा देश को नए सिरे से बनाना पड़ेगा। लेकिन हमने दूसरा चुना, करते करते हमने चुना कि हमारे जितने म्यूजियम्स हैं, जितनी लाइब्रेरीज हैं, ओ सॉरी, नहीं बताइए सर, आई कैन हियर यू। सो यू कैन हियर मी, यस। बट ये बैटरी लो दिखा रहा है। एनीवे, ओके। तो अ, हमने म्यूजियम सेफ्टी और लाइब्रेरी सेफ्टी का काम शुरू किया। पहला कंट्री लेवल का सेमिनार मैंने नेशनल म्यूजियम में किया है, और जितने म्यूजियम्स हैं, जितनी लाइब्रेरीज हैं, जितने ये हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए मैंने एक स्पेसिफिक टीम और टेक्नोलॉजी और पूरी रिसर्च करके ये बनाई है। तो उस पे थोड़ा थोड़ा हम काम शुरू कर रहे हैं, उनके डीएम प्लान बना रहे हैं। हैदराबाद भी आना है, कई म्यूजियम्स हैं, शायद उनका बना पाऊँ। तो ये काम शुरू किया है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट है। मैं अथॉरिटी के साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कंट्री की सबसे बड़ी बॉडी है, उनसे मिलके मैं काम करता हूँ। कूल, वेरी नाइस। जी। बहुत बहुत अच्छा हुआ आपसे मिल के, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप जैसे सीनियर्स चाहिए। एंड लॉट ऑफ आर्टिस्ट डोंट नो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ पर्सन हु इज़ अ फ्रेंड हु कैन सेल योर आर्ट। सो आप श्योर। जैसे ने बोला है, लोग सोचते हैं कि ये खाली टाई पहनते हैं, मतलब, बट विदाउट नोइंग द आर्टिस्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट द आर्ट एंड showcase it. And एब्सोल्युटली, yeah, एब्सोल्युटली। sales people also need respect, and we're glad you worked, मतलब आपका जो experience आपने जो share किया है, जी। it will change the perception not only for the artist, for the people who are running galleries, for people who have the expectation of valuation and what should be done. And सर, आर्टिस्ट हमेशा बड़ा होता है, हमसे तो बड़ा ही है, क्योंकि वो क्रिएट कर रहा है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट कहीं कोई संतुलन बनना चाहिए, दैट विल बी नाइस फॉर देम। And we are looking for good artists always. So definitely, let's see how to grow, how to yeah, structure. जी। but most important takeaway from the entire talk is the relationship. अगर आप अच्छा relationship maintain करते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. I mean, that is very In important. I think that's the in big in takeaway. every manner, every business, any circumstance, relations are main important things, sir. उसी से सब कुछ होता है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, चाहे आप घराने हैं, देखिए घराना क्यों है, रिलेशन पे ही है ना। Hmm. जो वोकलिस्ट हैं या शास्त्रीय संगीत के लोग हैं, संजोग से अभी यहाँ घराना सिस्टम तो नहीं है। कितने लकी लोग हैं आर्टिस्ट, नहीं तो क्या होता, बहुत खराब होता। तो मेरे ख्याल से रिलेशनशिप बहुत मायने रखती है। इसको आर्टिस्ट लोग इसके वजूद को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें और बनाएं। बहुत लोग हमसे भी काबिल लोग होंगे, उनसे मिलें, डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता ठीक है सर, थैंक यू सर लॉट, आप शो पे ज्वाइन हुए एंड आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी वैल्यूबल जो आपने डिस्कस है। किया है, एंड विद थैंक यू सर, एग्जाम्पल आपने, बहुत। आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, अपने प्लेटफॉर्म पे लिया। थैंक यू स्नेहा फॉर योर स्पेशल regard for me that you have selected me to speak. And thank you, Ravi ji. So nice talking to you, and you have very, very good questions. I also learned something which I just wanted to. Thank you so much. Thank you, sir. And friends, do keep connected. So I'll also, we couldn't share much pictures over here, but I do have a file of the brochure of the progressive art. So we will check if we can share a link, or Yeah. we can play that. So
thanks a lot for joining in, and do follow Sir in terms of his current activities, what Progressive Art Gallery is doing. He's doing great things along with his son now, so you will Yeah. come to know about that. So thanks a lot, friends, for joining this particular show. Have a great day. Thank you, sir. Nice. Thank you, sir. Namaskar, दोस्तों.